Hello everyone, I hope you are doing good and you are studying really well for your examinations. As you know, the Institute of Cost Accountants has released a new study material for your CMA final paper number 19, that is Cost and Management Audit. This is the April 2021 edition which has been released very recently. तो इसमें हमने कुछ changes, कुछ additions, updates observe किए हैं which we'll be covering in these update classes. We are conducting these classes chapter wise, तो आपको हर chapter के साथ में इसको cover कर लेना है. So whenever you are revising or studying a particular chapter, with that chapter cover the updates also. Now from where do we study these updates, ma'am? Where will we get the notes? If you have the new study material with you, you can refer to the new study material which has been given by the institute. If not, you can refer to the supplementary material that I'll be using in the class. Ma'am, from where will we get the supplementary material? From your class slides, in our Telegram channel. Also, if you are watching this video on YouTube, in the description box, you will find the link of the supplementary material. समझ में आ गया नोट्स कैसे रेफर करने हैं. बात आती है मैम कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ना है. ये स्टूडेंट्स अपियरिंग इन December 21 एंड ऑनवर्ड्स, यू हैव टू रेफर टू दीज अपडेट्स. तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7. ओके, द सीक्वेंस दैट आई एम फॉलोइंग इन द अपडेट क्लास इज द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स which we had covered in our volume 2 of the cost and management audit. So chapter number 7, that is cost auditor professional ethics and responsibilities के अंदर जो updates हैं, that I'll be covering in this particular lecture. In brief, I'll just be sharing with you what is the biggest update in this chapter. Some of you might already be knowing the biggest update is your professional ethics has now been introduced in the new study material. Already in the class I had given you just a brief about it. Professional ethics के हमने fundamental principles discuss किए थे. Fundamental principles of ethics. Remember, बताइए एक बार. Integrity, objectivity, confidentiality, competence and professional behavior. Now the institute has actually included the professional ethics का part, the schedules of the Cost and Works Accountant Act in your syllabus. So this is one major change that has been made in the new study material. But don't worry, very easy. I have made the notes very simple and easy for you. You will be able to understand it properly. Okay. चलिए, इसके बाद और एक एडिशन इस चैप्टर के अंदर जो है, some sections from your Cost and Works Accountant Act, directly from your Cost and Works Accountant Act, CWA Act have been included. Basically penalties, अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो उसमें क्या penalties लग सकती है when you become a cost auditor, वो सारे penalties हमने उस section के अंदर cover करनी है. So first I'll be starting with the main important basic part, that is the professional ethics. Basically इस term को, इस topic को अगर आप समझें तो professional plus ethics. Once you become a cost accountant, what do you become? Do you become a cost auditor once you qualify? No. Once you qualify the examination, you become a member of the institute. जब आप सारी trainings वगैरह कर लोगे, you will become the member of the institute. And once you obtain, if you are into practice, if you want to go into practice, तो अगर आप certificate of practice, जिसको COP कहते हैं, वो obtain कर लेते हैं, in that case you can work as a cost auditor. तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या हो गया? किसी भी प्रोफेशन में, बी इट CMA, बी इट CA, बी इट एन एडवोकेट, बी इट अ डॉक्टर, बी इट engineer, any profession you go into, you have a certain set of conduct, a code of conduct that needs to be followed. सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं. स्कूल टाइम में जाते हैं, मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको रिलेट करने के लिए इसी तरह के देती थी. रिमेंबर इन द क्लास? यस. सो when we were in school, did we have to follow certain rules and regulations? टाइम पे आना है, क्लास इतने बजे ओवर होगी, लंच टाइम इतने बजे होगा, इन बिटवीन द क्लासेस यू कैन नॉट हैव फूड, प्लेग्राउंड में यू कैन नॉट गो एनी टाइम, यू जस्ट कैन गो इन द गेम्स पीरियड, गेम्स क्लास. एग्जाम्पल, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जो हमें फॉलो करने पड़ते थे. ये हो गए स्टूडेंट्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस. आपको क्या लगता है आपके जो टीचर्स थे उनके लिए भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता था? डेफिनेटली. सो whoever is part of that organization, that school or college, were bound by a set of rules, regulations, a code of conduct. Similarly, if you are a doctor, medical institute जो है
उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है यू हैव टू अबाइड बाय दैट। मैम ये कोड ऑफ कंडक्ट क्यों ज़रूरी होता है? कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज वंस वी आर अ पार्ट ऑफ अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, a professional body, we need to act like professionals. We cannot be very casual in our work. We have to act like professionals. And professional मतलब ये नहीं कि मुझे taxation की बहुत अच्छी knowledge है, मुझे IFRS, मुझे Ind AS की बहुत अच्छी knowledge है, I am a good professional. You also need to have ethical principles. You need to follow the values, the code of conduct. You have to abide by the code of conduct. Now I was talking why this code of conduct is important, because once you are a part of a professional body, you are representing that professional body. ठीक है, कभी भी आप कहीं जाते हो CMA क्वालिफिकेशन के बाद में सब आपको क्या कहेंगे, ये CMA है। CMA है मतलब क्या, you are representing the institution, the supreme, you are representing your prestigious, the supreme institution, all right। तो अब अगर आप एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हो, एक सेट ऑफ कंडक्ट नहीं दिया रहता है, तो क्या हो सकता है, कोई यू कैन ऑल्सो डिफेम योर प्रोफेशन, यू कैन डू सम, यू कैन एक्ट इन अ वे विच इज डिफेमिंग द इंस्टीट्यूशन। यू मतलब आप जरूरी नहीं है, कोई भी मेंबर ऐसा कर सकता है, इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट नेसेसरी होता है, राइट। सो in this chapter we'll be basically talking of certain professional misconducts. चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया ना, प्रोफेशनल को जो एथिक्स दैट इज वैल्यूज फॉलो करने हैं वो हो गया आपका प्रोफेशनल एथिक्स। तो मैम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या हुआ? मिसकंडक्ट मीन्स, मिसकंडक्ट इंक्लूड्स एनी एक्ट मतलब आपने कुछ ऐसा एक्शन किया, कुछ ऐसा आपने काम किया, और ओमिशन ऑफ एनीथिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। एक तो आपने गलत काम किया, दूसरा आपको कुछ सही करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। सो एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ एन एक्ट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो विच इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्केड्यूल। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट एंड सेकेंड स्केड्यूल, जो स्केड्यूल्स हैं CWA एक्ट में 2 स्केड्यूल्स है, फर्स्ट स्केड्यूल एंड सेकंड स्केड्यूल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को लेके। उसके अंदर जो भी एक्ट्स दिए गए हैं, या तो आपने वैसा काम किया या जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। सो एक्ट, दिस इंक्लूड्स एनी एक्ट और ओमिशन प्रोवाइडेड इन द स्केड्यूल्स। इसको हम इंक्लूड करेंगे प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट में। तो मैम इसका मतलब यही हो गया कि सिर्फ शेड्यूल्स में जो बातें लिखे हैं हमें वही फॉलो करनी है, बाद बाकी अगर कुछ ऐसा काम हो भी विच इज अगेंस्ट द मॉरल्स, अगेंस्ट द एथिक्स, वी कैन डू दैट? नो। क्या लिखा है यहाँ पे? बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड टू लिमिट और अब्रिज in any way the power conferred or duty cast on the director discipline under subsection 1 of section 21 to inquire into the conduct of any member। इसके अलावा भी अगर डायरेक्टर डिसिप्लिन को लगा, डिसिप्लिनरी कमेटी होगी एक इंस्टीट्यूट की, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। अगर इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिन डायरेक्टर को लगता है कि मुझे इंक्वायरी करनी है इस मेंबर के एक्शंस को लेके, बट योर एक्शन इज नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, तो क्या वो कर सकते हैं? यस, दे कैन स्टिल डू दैट। दैट मे ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन योर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो प्रूव हो जाता है तो। इज इट क्लियर? नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइंड में ये चैप्टर में जा रही हूँ। रिवाइंड मतलब ये पोर्शन आपके इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड अंडरस्टैंड, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैम स्टूडेंट के मन में आ सकता है, मैम अगर हम आफ्टर क्वालिफाइंग ये जो प्रोफेशनल एथिक्स आप बताने वाले हैं कि आप ऐसा करो ऐसा ना करो, अगर इसको हम नहीं फॉलो करते तो मैम होगा क्या? तो जब मैं आपको इसका इंजाम बता दूंगी कि ये नहीं करने से आपको ये कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है, तो आप और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे व्हेन आई कम टू द मेन टॉपिक। सो आई जस्ट मेक अ शॉर्ट चार्ट ओवर हियर, इवन यू कैन ड्रॉ दिस। ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको मैं समराइज कर रही हूँ यहाँ पर। जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, दिस हैज़ बीन कवर्ड इन 2 schedules, ठीक है।
पहला है फर्स्ट स्केड्यूल, वाओ मैम, फर्स्ट स्केड्यूल, यस। सेकेंड वन इज सेकेंड स्केड्यूल, वेरी सिंपल। चलिए अभी तक तो बहुत इजी लग रहा है। जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसके अंदर आपको मिलेंगे 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, part 3 and part 4. So basically first schedule is divided into 4 parts, part 1, 2, 3, 4. Second schedule you will find 3 parts. 1, 2 and 3. Now in part 1 there are total 11 clauses. ठीक है, part 2 में देर आर 2 क्लॉजेज। यहां पर 3 बातें हैं, क्लॉजेज मतलब 3 बातों के बारे में डिस्कशन हुआ है। हियर यू हैव 2 क्लॉजेज, सो इट्स 11, 2, 3, 2 इन द फर्स्ट शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल यू हैव 10 क्लॉजेज इन पार्ट 1, you have 4 clauses in part 2 and 1 clause in part 3. मैम 2 schedules क्यों है? सबसे पहले तो ये बता दूं, फर्स्ट schedule में लेस हीनस क्राइम्स, ठीक है, मतलब कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है, बट इन द सेकेंड स्केड्यूल बड़े बड़े ऑफेंसेस के बारे में बात की गई। फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लाइंट का कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आपने उनके किसी कंपेटिटर को दे दी, ये बड़ा गुनाह हो गया भैया। आपको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया गया था, आप अपने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को ब्रीच कर रहे हो। ये तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी था एथिक्स का, प्लस ये सेकंड शेड्यूल में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर भी कवर्ड है। सो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर द ऑफेंसेस आर माइनर ऑफेंसेस यू कैन से, एंड सेकेंड शेड्यूल मेजर ऑफेंसेस। लिख भी सकते हैं याद करने के लिए। ये हो गए छोटी छोटी बातें, ये वाली हो गई बड़ी बड़ी बातें। ये हो गया किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नाउ अगर आप गुनहगार पाए जाते हैं अंडर द फर्स्ट शेड्यूल, सो दैट मैटर इज प्लेस्ड बिटवीन हुम। पहले तो प्रूव होगा ना कि गिल्टी हैं आप या नहीं है, आपने ये कार्य किया या नहीं किया। सो द मैटर विल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूट। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। और अगर सेकेंड शेड्यूल में गिल्टी पाए गए हैं तो और हायर अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी कमिटी। इज इट क्लियर? फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी पाए गए तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, सेकेंड में गिल्टी पाए गए तो डिसिप्लिनरी कमिटी के आगे मैटर को प्लेस किया जाएगा। अब मैम ये लोग करेंगे क्या? इफ यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन यहां पे क्या कर सकता है? आपके अगेंस्ट 3 एक्शन ले सकता है, एनी और मोर। आपको सबसे पहले तो रिप्रीमांड किया जाएगा। रिप्रीमांड मतलब वार्न किया जाएगा कि यू हैव डन दिस, यू कैन नॉट डू इट इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में आपने किया तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो दैट इज रिप्रीमांड। ये कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। कैसे बनाऊँ इसको? इस तरह से बना दिया जाए। चलो, यू कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली इन योर नोटबुक ऑल्सो। ये रिप्रीमांड हो गया। सेकेंड, अगर फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी पाए गए तो रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रिमूवल ऑफ नेम फॉर अ पीरियड अप टू 3 months। 3 महीने तक आपका नाम मेंबरशिप रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। इट वुड बी ट्रीटेड एज इफ यू आर नॉट अ CMA। 3 महीने तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्टली फाइन लगा सकते हैं, फाइन अप टू ₹1 लाख, ठीक है। वहीं अगर सेकेंड शेड्यूल में आप गिल्टी पाए गए या फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में गिल्टी पाए गए, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में अगर पाए गए तो सेकेंड बड़ा वाला फाइन आप पे लगाया जाएगा, बड़ा वाला पेनल्टी। सो रिप्रीमांड किया जाएगा। रिमूवल ऑफ नेम कितने टाइम तक? इनडेफिनेटली या फिर परमानेंटली। रिमूवल ऑफ नेम
for an undefined period, और परमानेंटली आपका जो मेंबरशिप है वो छीन लिया जाएगा। और फाइन कितने का लगा सकते हैं? अप टू ₹5 लाख। समझ गए आप? अप टू ₹5 लाख। तो एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ आपको। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। ठीक है, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये। साथ ही साथ वंस यू क्वालिफाई एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, कौन सी बातों का आपको खास जो है ध्यान रखना है। सो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 4 पार्ट्स, पार्ट 1 2 3 4, क्लॉजेस कितने? 11 2 3 2। सेकेंड शेड्यूल 3 पार्ट्स, 10 क्लॉजेस, 4 क्लॉजेस एंड 1 क्लॉज। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल्स में माइनर ऑफेंसेस, सेकंड में मेजर ऑफेंसेस। फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी पाए गए तो मैटर वुड बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। सेकंड में गिल्टी पाए गए तो बिफोर द डिसिप्लिनरी कमिटी। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या कर सकते हैं? एनी ऑफ द 3 और मोर, या तो रिप्रीमांड कर सकता है, रिमूव द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पीरियड अप टू हाउ मेनी मंथ्स? अप टू 3 मंथ्स। मेरे साथ साथ बोलेंगे, याद हो जाएगा, अप टू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक आपका मेंबरशिप जो है सस्पेंड किया जा सकता है। फाइन कितने तक लगा सकते हैं? अप टू ₹1 लाख। मैम क्या तीनों में से एक करेंगे या कोई तीनों करेंगे? किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा? एनी ऑफ द 3 और मोर, या तो मैं तीनों करूंगी, रिप्रीमांड वार्न करूंगी, आपका मेंबरशिप रजिस्टर से नाम भी हटाऊंगी, फाइन भी लगाऊंगी, या मैं सिर्फ फाइन लेके छोड़ दूंगी, या मैं सिर्फ आपका जो नाम है वो रजिस्टर से हटाऊंगी। एनी और मोर। अगर सेकेंड शेड्यूल में गिल्टी पाए गए या फिर बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल में यू आर फाउंड गिल्टी, देन इन दैट केस व्हाट वुड बी द पनिशमेंट? पनिशमेंट इज reprimand the member. The disciplinary committee will reprimand the member, remove the name of the member from the register for an undefined period or permanently. कब तक आपको मेंबरशिप वापस मिलेगी कोई भरोसा नहीं उसका, जब तक उनकी as they deem fit. All right. Third one is fine up to ₹5 lakhs. Again, any of the 3 or more. Clear? So this part I have already covered. This is from section number 21(3) of the Cost and Works Accountant Act. तो अब पता चल गया कितना खतरनाक हो सकता है अगर आप जो है इन क्लॉजेस को फॉलो ना करें तो। सो नाउ पे अटेंशन। ठीक है, अपने को ऐसा कोई भी पेनल्टी फेस नहीं करना है। सो पे अटेंशन, लिसन टू इट प्रॉपर्ली। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, जब ये टॉपिक सीए के सिलेबस में पढ़ाया जाता है तो इसको काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन होता है इसका, एंड काफ़ी सारे केस स्टडीज भी डिस्कस की जाती है, बिकॉज द वेटेज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन देयर सिलेबस इज वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू योर्स. सो व्हेन आई टीच यू, इफ यू आर डूइंग बोथ सीए एंड सीएमए, आपको लगेगा सीए में तो इतना पढ़ा था, सीएमए में तो मैम इतना कम पढ़ा रही है. सो पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ, सीएमए के अंदर में इस चैप्टर से you can expect a 4 marks question or a 6 marks और maximum 8 marks question, max to max मैं बता रही हूँ. ठीक है, फ्रॉम द प्रोफेशनल एथिक्स पार्ट, और वहीं सीए में 16-20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं. सो यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस. सो कीपिंग इन माइंड द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम अपने डिस्कशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा. उसके आगे पीछे आपको और कुछ नहीं सोचने का है. बाकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बताना होगा तो आई विल शेयर इट विद यू. So let's start with the first schedule, part 1. 4 पार्ट थे ना फर्स्ट शेड्यूल में, अभी हम शुरू कर रहे हैं with the part 1. This is professional misconduct in relation to cost accountants in practice. तो अगर आप CMA बनने के बाद कहीं पर जॉब कर रहे हैं, you are working with say GAIL or SAIL or you are working with ITC, say for example, तो क्या आपको फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 को फॉलो करना है? नहीं, it is not applicable on you. First schedule part 1 is applicable only to cost accountants in practice. What do we mean by cost accountants in practice? The cost accountants in practice means the ones who are holding a valid certificate of practice. Who are holding a valid certificate of practice. Clear? So, a cost accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he does any of the following acts. So, you see, how many clauses are there? Total 11 बताया था मैंने, 11 clauses हैं. एक एक करके डिस्कस करते हैं. ये फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल
इसका जन्म कहाँ से हुआ है? फ्रॉम योर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट इट हैज़ बीन टेकन। मैंने आपके ईज के लिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स कुछ यहाँ पर बना दिया है सो दैट यू कैन स्टडी इट प्रॉपरली, ओके, एंड यू कैन रिमेंबर बेसिकली क्लॉज बाय क्लॉज आपको याद रह सके। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ कीवर्ड्स एक टैबुलर फॉर्मेट में बना दिया है। सो नंबर 1 इज यूज ऑफ नेम इन प्रैक्टिस। क्लॉज 1 is use of name in practice. What can you infer from this? If you are a cost accountant, can you allow your friend or your say brother or sister कि आप मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर लो? No, you cannot do so. You are a professional, आपको मेंबरशिप दी गई है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया गया है. How can you allow someone else to practice in your name? It's not allowed. ठीक है, ऐसा करने से मैम क्या हो जाएगा अगर मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर लेगा तो? अरे क्या हो जाएगा मतलब क्या? अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया गया है, आपको काबिल समझा गया है टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट, हाउ कैन यू आउटसोर्स इट टू समवन एल्स? नो. बट इसके अंदर एक्सेप्शन है. अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 फ्रेंड्स जो हैं पार्टनर्स हैं, दोनों कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं, तब क्या वो फर्म के नाम पे दोनों लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. All right, if I have employed someone in my firm, तो क्या वो मुझे कॉस्ट ऑडिट में हेल्प कर सकते हैं? क्या वो मेरे फर्म का नाम यूज कर सकते हैं इन द कॉस्ट ऑडिट? यस, डेफिनेटली. तो एक्सेप्शन क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया पार्टनर या फिर पर्सन एम्प्लॉयड बाय द कॉस्ट ऑडिटर. ऑल राइट, सो इफ एक बार मैं फिर स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज any person means anyone. Ma'am, mummy papa bhi? Yes, mummy papa bhi. Don't get emotional. Any person to practice in his name as a cost accountant unless, so this is the exception, unless such person is also a cost accountant in practice and is in partnership or employed with him. तो कैच क्या हो गया? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट विथ अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना ही चाहिए, प्लस आपका पार्टनर होना चाहिए या फिर आपका एम्प्लॉय होना चाहिए. ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? एक्सेप्शन क्या हो गया? एक्सेप्शन अगर मैं लिखूं तो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है जो या तो पार्टनर है या फिर एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय भी कोई एम्प्लॉय नहीं, बीकॉम ग्रेजुएट को आपने रख लिया है और आप कहोगे मेरे नाम पे प्रैक्टिस करो? नो. मेरे फॉर्म का नाम यूज करो? नो. कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हु हैज बीन एम्प्लॉयड विथ यू. ऑल राइट, सो दिस इज क्लॉज नंबर 1. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्लॉज, इट्स अबाउट शेयरिंग फीस और प्रॉफिट विथ अदर्स. सपोज आप एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है. फर्स्ट शेड्यूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ओनली ऑन कॉस्ट अकाउंटेंट्स हु आर एंगेज्ड इन प्रैक्टिस. यू आर अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट. आपने क्या किया? आपने कंपनी के टैक्सेशन मैटर्स को डील करने के लिए अपने किसी फ्रेंड को बोला कि यू कैन हैंडल द टैक्सेशन मैटर्स हियर एंड आई विल बी गिविंग यू सर्टेन परसेंटेज ऑफ माई प्रॉफिट. वाई वुड यू डू दैट? मे बी यू आर गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ दैट. मे बी वो आपको कहीं और काम दिला रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट उनको शेयर कर रहे हो. सेकेंड एग्जाम्पल, आप कॉस्ट ऑडिटर हैं या आप इंटरनल ऑडिटर हैं, आपने काम किसी और से करवाया. ठीक है, काम किसी और से करवाया तो ये तो पहला क्लॉज में ही चला जाता है, यूज ऑफ नेम इन प्रैक्टिस, यू आर अलाउइंग समवन एल्स. बट ठीक है, चलो वो छोड़ो, आपने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली किसी को आउटसोर्स कर दिया काम और साइन आप ही कर रहे हैं. ऑल राइट, तो क्या हो गया यहाँ पे? आप उनके साथ अपना प्रॉफिट कुछ शेयर कर रहे हो बाई वे ऑफ एनीथिंग, कमीशन, और यू आर शेयरिंग योर प्रॉफिट डायरेक्टली. आर यू अलाउड टू डू दैट? नो. मैम, पार्टनर के साथ भी नहीं कर सकते हैं? अरे भैया, पार्टनर के साथ तो कर ही सकते हैं. कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, आपका पार्टनर अगर है तो उसके साथ तो फीस शेयर होगी, बिकॉज आप फर्म फॉर्मुलेट करके रखा है आपने. तो इस क्लॉज में क्या लिखा है? इफ यू पे और अलाउ और अग्रीज टू पे और अलाउ either directly or indirectly any share, commission or brokerage in the fees or profits of his professional business to any person, okay, note this, other than a member of the institute or a partner or a retired partner or legal representative of a deceased partner or a member of any other professional body जो कि council ने
इंक्लूड किया कि ओके इसके साथ आप फीस शेयर कर सकते हो, जो कि कुछ इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर। एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय द इंस्टीट्यूट, उनके साथ आप फीस शेयर कर सकते हो। तो किसी दूसरे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ मैम कर सकते हैं जो कि हमारा पार्टनर नहीं है, यस उनके साथ भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर शेयरिंग द वर्क, से जॉइंट ऑडिट अगर हो रही है, जॉइंट ऑडिट होगी तो फीस तो शेयर करनी पड़ेगी। दैट पर्सन इज अ सेपरेट ऑडिटर, यू आर अ सेपरेट ऑडिटर, ठीक है। तो अदर दैन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट और योर ओन पार्टनर, या फिर अगर पार्टनर रिटायर हो गया अभी भी उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर पार्टनर की डेथ हो गई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल, उनके साथ ही आप सिर्फ फीस शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर पार्टनर मतलब पार्टनर रिसाइडिंग इन इंडिया और includes a partner residing outside India with whom cost accountant has entered into partnership। तो अगर आपका cost accountant बाहर का है, ठीक है, residing outside India, in that case also that is covered in the definition of partner, उनके साथ आप फीस शेयर कर सकते हैं। ये हो गया क्लॉज नंबर 2। सो whenever we are doing the clauses, हम एक बार पीछे के क्लॉज को भी रिवाइज करेंगे सो दैट लर्न भी आपको साथ साथ होते जाए। क्लॉज नंबर 1 क्या था? यूज ऑफ नेम एंड प्रैक्टिस। क्लॉज नंबर 2 हो गया शेयरिंग प्रॉफिट्स और फीस। अब आते हैं क्लॉज नंबर 3 में। तो पहले सेकंड क्लॉज में बात हो गई देने की, थर्ड क्लॉज में बात हो रही है लेने की। कैन यू रिसीव प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट या कमीशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन? जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, टैक्स कंसल्टेंट को आपने अपना कुछ शेयर दिया, उनसे कुछ शेयर लिया, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो इफ यू एक्सेप्ट और अग्री टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, क्या किसी कॉस्ट ऑडिटर से हम ले सकते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। अगेन जॉइंट ऑडिट का एग्जांपल। Provided that nothing herein contained shall be construed as prohibiting a member from entering into profit sharing or other similar arrangements, including receiving any share, commission or brokerage from professional body or other person having qualification as referred to item number 2। तो वही हो गया ना, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या किसी ऐसे प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, उनके साथ फीस शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, तो क्लॉज 2, 3 क्लियर हो गया। आते हैं क्लॉज नंबर 4 में। क्लॉज नंबर 4 इज अबाउट नॉन परमिसिबल पार्टनरशिप्स। सो द इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स restricts you from entering into partnership with any other professional other than member of this institute। मतलब अगर आपको पार्टनरशिप फर्म खोलना है तो 2 कॉस्ट अकाउंटेंट्स का खोल सकते हैं। You cannot enter into partnership with any other professional। So a cost accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India with any person other than a cost accountant in practice। इसमें एक और स्पेशल बात है, अगर किसी सपोज जहाँ जैसे इंडिया में आप CMA कर रहे हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, वैसे ही बाहर का जो कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो बाहर सपोज US का और ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का जो कॉस्ट अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेशन है, जो कोर्स है, वो किसी ने कर रखा है, वहाँ के कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ क्या पार्टनरशिप कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सो और सच अदर पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इंक्लूडिंग अ रेसिडेंट हु बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड वुड बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर। सिर्फ सिंस वो बाहर का रेसिडेंट है, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर वो मेंबर होते इंस्टीट्यूट के, अगर वो रिसाइड करते इंडिया में, दे वुड हैव बीन डीम्ड टू बी मेंबर, उनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। और अगर कभी इंस्टीट्यूट ने कुछ नोटिफाई कर दिया दैट यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एडवोकेट्स, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो बार काउंसिल है उनके मेंबर्स के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, वो इधर आ जाएगा। सच अदर पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी हैविंग क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक मैम कुछ प्रिस्क्राइब्ड है? नो। क्लॉज नंबर 4 डन। तो 4 क्लॉज क्या हो गया अभी तक? क्लॉज नंबर 1 बताइए फटाफट, यूज ऑफ नेम एंड प्रैक्टिस। क्लॉज नंबर 2 शेयरिंग प्रॉफिट्स, गिविंग योर प्रॉफिट्स और पार्ट ऑफ योर फीस। थर्ड वन इज रिसीविंग प्रॉफिट्स और फीस। फोर्थ इज नॉन परमिसिबल पार्टनरशिप्स। अब फिफ्थ और सिक्स्थ रिलेटेड है। फिफ्थ और सिक्स्थ इज रिलेटिंग टू सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स, सिक्योरिंग बिजनेस, ठीक है, किसी तरह से एड वैड कर लेना। तो क्या कर सकते हैं ऐसा हम?
क्या आप एक बैनर लगा सकते हैं अपने घर के पास में या अपने ऑफिस के पास में या कोई मेन जंक्शन पे बड़ा सा बोर्ड लगा दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म है हमारी, हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं फ्रॉम द लास्ट 10 years और सो, पाइनियर एंड दिस एंड दैट, क्या आप लगा सकते हैं ऐसा कुछ? मैम क्यों नहीं लगा सकते? जब प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हो सकता है तो हम सर्विस का क्यों नहीं कर सकते हैं? दैट इज नॉट अलाउड बाय द इंस्टीट्यूट. In order to keep a healthy competition in the profession, this kind of advertisements are not allowed in the are being restricted by the professional ethics. So this securing business from others मतलब हो गया securing business from any other person other than your partner or your employee. किसी थर्ड पर्सन से आपने कुछ कमीशन वमीशन दे के बिजनेस सिक्योर किया, एड वगैरह दे के बिजनेस सिक्योर किया, नॉट अलाउड. ठीक है. सिक्योर्स आइदर टू द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ सच कॉस्ट अकाउंटेंट और हु इज नॉट हिज पार्टनर. तो पार्टनर एम्प्लॉय कवर्ड. एक्सेप्शन क्या हो गया? अपने पार्टनर एम्प्लॉय से तो ले ही सकते हैं ना बिजनेस. or by means which are not open to a cost accountant. What are means which are not open to a cost accountant? तो कई बार क्या है, गवर्नमेंट के कई सारे टेंडर्स आते हैं, say tender for appointment of cost auditor for the year 21-22. In that tender, can I respond? Yes, you can respond. That is a mean that is open to a cost accountant. You can do so. It is permissible. Similarly, write-up के through you can secure work. That is also permissible. But write-up के अंदर again आप flowery language नहीं use कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा कुछ अपनी तारीफें, अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को झलकाना, वो सब नहीं कर सकते हैं. सिंपल राइटअप के थ्रू यू कैन ऑल्सो सिक्योर बिजनेस. दैट इज अलाउड. तो 3 लोगों से बिजनेस लिया जा सकता है, पार्टनर से, एम्प्लॉय से, एंड मीन्स विच आर ओपन टू अ कॉस्ट अकाउंटेंट. ऑल राइट. नेक्स्ट क्लॉज नंबर 6 इज सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स. मैम सॉलिसिट मतलब क्या होता है? यहां पर क्लॉज नंबर 5 में हमने जो पढ़ा, किसी थर्ड पर्सन से हम काम ले रहे हैं. जैसे आपका कोई और एक दोस्त है कॉस्ट अकाउंटेंट है, आपका कोई और एक दोस्त है वो कॉस्ट अकाउंटेंट है, आपका पार्टनर नहीं है. आपने क्या किया कि तेरा जो क्लाइंट होगा उसकी इंटरनल ऑडिट मैं कर दूंगा, मेरा जो क्लाइंट उसकी कॉस्ट ऑडिट तू कर देना. इस तरह से मतलब सिक्योर करना बिजनेस बाय फॉल्स मीन्स, बाय रॉन्ग मीन्स, वो अलाउड नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स. सॉलिसिट मतलब होता है किसी को प्रेस करके, प्रेस एज इन किसी को बहुत इन्फ्लुएंस करके, इतना प्रचार किया आपने कि वो आपके बारे में जानने लग गए और आपसे काम करा रहे. प्रचार इज नॉट अलाउड. बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. अपना ही पर्सनल इंटरव्यू आपने करवाया और इंटरव्यूअर को क्वेश्चन की लिस्ट भी आपने ही दी कि मुझे ये क्वेश्चंस पूछना, कि आपने कितने ईयर से प्रैक्टिस करी है और आपने किस तरह से कॉस्ट ऑडिट्स करी है, आपकी खासियत क्या है, मुझे ये सारे क्वेश्चंस आप पूछना, जिसमें आपकी तारीफें होंगी, आपके प्रोफेशनल अटेनमेंट्स झलकेंगी, एंड अ गुड पिक्चर ऑफ योर्स विल बी शोन. इट इज़ नॉट अलाउड. ठीक है. सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई वे ऑफ सर्क्यूलर, गली गली में सर्कुलर बांट रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू, और बाय एनी अदर मीन्स. यहां पर 2 एक्सेप्शंस हैं. एक हो गया कि दूसरे किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से आप काम ले सकते हैं. एनी कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग फॉर और इन्वाइटिंग सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम एनी अदर प्रोफेशनल, एनी अदर कॉस्ट अकाउंटेंट. जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया आपको दोस्त वाला, अगर दोस्त सपोज सीए है और आप सीएमए हैं, आप उनसे बिजनेस ले रहे हैं, दैट इज अलाउड, नॉट अलाउड. आप सिक्योर कर रहे हैं बिजनेस बाय रॉन्ग मीन्स. बट अगर दोस्त भी कॉस्ट अकाउंटेंट है, आप भी कॉस्ट अकाउंटेंट है, सेम फ्रेटर्निटी को आप बिलोंग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट अपने फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना चाहती है, आपस में बिजनेस शेयरिंग कर सकते हैं. सो प्रीवियसली मैंने जो बोला वो सीए और सीएमए का एग्जाम्पल था. ठीक है. ये सीएमए और सीएमए का एग्जाम्पल. नेक्स्ट, टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी आई वहां पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दैट इज अलाउड. क्लियर. क्लॉज नंबर 7 इज एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और डेजिग्नेशन. आपने सीएमए के साथ अपने विजिटिंग कार्ड में लिख रखा है टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स एडवाइजर सिंस अ डेकेड, बेस्ट टैक्स एडवाइजर, बेस्ट टैक्स कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. इस तरह के आपने एडजेक्टिव्स यूज कर रखे, अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को आपने
एडवर्टाइज करके रखा है इन योर विजिटिंग कार्ड्स, इन योर लेटर हेड, इन द वेबसाइट, इज दैट अलाउड? Not allowed. So advertises his professional attainments or services or uses any designation or expression other than cost accountant on professional documents, visiting cards, letterheads, board sign boards वगैरह. अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, that is a recognized certification, that is a recognized degree from a university, तो उस तरह के चीज़ें जो है बीकॉम ग्रेजुएट हैं आप वो लिख सकते हैं इन योर विजिटिंग कार्ड, दैट इज अलाउड अगर इंस्टीट्यूट उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो. क्लियर? तो 5, 6, 7 ना बेसिकली एड, प्रचार एंड यू नो क्लाइंटिल कैसे बढ़ाना है उससे रिलेटेड है. 5th वन क्या था? 5th वॉज सिक्योरिंग बिजनेस फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से बिजनेस लेना. एक्सेप्शन क्या था? पार्टनर और एम्प्लॉय. 6th क्या था? सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, सर्क्यूलर, पर्सनल इंटरव्यूज, कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा. इसके अंदर 2 एक्सेप्शन क्या थे? इंक्वायरीज टेंडर में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दूसरे कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से हम वर्क सिक्योर कर सकते हैं. 7th इज एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अटेनमेंट्स एंड यूज ऑफ डेजिग्नेशंस. Coming to the 8th part, 8th clause, it is no communication with previous auditor. So whenever you are appointed as a cost auditor, पहले जो ऑडिटर था अगर वो उस कंपनी में पहले से कॉस्ट ऑडिट चल रही है, you are required to communicate with the previous auditor in writing. You are required to communicate with the previous auditor in writing. So if you accept the position as a cost auditor विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर, मैम ये क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात इसलिए हो गई बिकॉज वंस यू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर यू गेट टू नो कि यहाँ पे क्या की पॉइंट्स है जहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं, किस लिए उनको अगर उनको रिमूव करके आपको लाया गया, व्हाट वाज द रीजन व्हाई दैट प्रीवियस ऑडिटर वाज रिमूव्ड, क्या मैनेजमेंट इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क्स हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है. नेक्स्ट क्लॉज नंबर 9 इज वेरिएबल और कंटिंजेंट फीस. अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूं, इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मटेरियल जो रिलीज किया है, ठीक है ना, उसके अंदर भी इन पार्ट 1 इंस्टीट्यूट के मैट में यू विल फाइंड ओनली टिल क्लॉज नंबर 7. इन इंस्टीट्यूट्स मैट ओनली टिल क्लॉज नंबर 7, बट एक्चुअल में पार्ट 1 के अंदर 11 क्लॉजेज हैं. CWA एक्ट के अंदर अगर आपको इच्छा है वेरीफाई करने की, CWA एक्ट के अंदर यू गो एंड फाइंड द फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, यू विल सी 11 क्लॉजेज आर देयर. सो आई विल बी टीचिंग द कंप्लीट पोर्शन. इफ यू वांट टू फॉलो व्हाट इंस्टीट्यूट हैज डन, आप क्लॉज 7 तक पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन है आप सिर्फ यहाँ पे 4 क्लॉज और पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई हर्जाई नहीं है, बाकी आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो काम आएगा ही. क्लॉज नंबर 8 हो गया. 9 क्या है? वेरिएबल और कंटिंजेंट फीस. आप क्लाइंट के लिए कोई सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, से क्लाइंट को बैंक से लोन चाहिए, आपने फीस किस तरह डिसाइड की कि बैंक आपको जितना लोन दे देता है, जितना लोन आपका सैंक्शन हो जाता है उसका 10% आप मुझे एज फीस दे देना. अब इससे क्या होगा मैम? ये किस तरह से, इसका लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक ये है, अगर आपने इस तरह से कंटिंजेंट फीस डिसाइड कर रखी है, वेरिएबल एक फीस डिसाइड कर रखी है, तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा, सब्जेक्ट मैटर कौन सर्टिफाई कर रहा है? आप कर रहे हैं, तो आप ऐसा उसे प्रिपेयर करेंगे कि कंपनी को लोन ज्यादा अमाउंट का सैंक्शन हो, आपको फीस ज्यादा मिल जाए, irrespective of the fact that information is correct or not. Are you trying to understand what I'm saying? अगर फीस कंटिंजेंट डिसाइड की जाती है तो जो सब्जेक्ट मैटर है अटेस्टेशन का, जिसके ऊपर आप अश्योरेंस दे रहे हैं, वो मैनिपुलेट हो जाएगा. इट वुड नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू because of your personal financial interest. So a cost accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he charges or offers to charge, accepts or offers to accept in respect of any professional employment fees which are based on percentage of profits. Based on percentage of profits और which are contingent upon the findings or results. अच्छा, अगर आपको लोन सैंक्शन हुआ तो मुझे इतना फीस, अगर नहीं हुआ तो इतना, एक्सेप्ट एज परमिटेड अंडर एनी रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो क्लॉज 9 हो गया. क्लॉज 10 इज अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन.
आप एक सीएमए हैं क्या, आप साइड में अपना एक बिजनेस भी खोल सकते हैं। सीएमए इन प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, सीएमए इन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, क्या आप साइड में अपना एक बिजनेस भी खोल सकते हैं। मैम मुझे फूड ट्रक का बिजनेस खोलना है, नॉट अलाउड। मैम क्या प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट को इसमें, क्योंकि अगर आप अपना फूड ट्रक का बिजनेस खोलते हैं, इन दैट केस आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, योर टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज वुड बी डिवाइडेड एंड यू माइट नॉट give your 100% in your profession, you will not be able to give your 100% in the profession। तो जो प्रोफेशनल की क्रेडिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन वाई दिस अदर ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस इज नॉट अलाउड। इसके अंदर भी इंस्टीट्यूट अगर कुछ गाइडलाइंस इशू करके कुछ चीज़ें अलाउ करती है, जैसे अगर मैं कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ और मुझे साथ साथ में कुछ घंटे इन अ वीक पढ़ाना भी है, तो हो सकता है इट इज अलाउड बाय द इंस्टीट्यूट, हो सकता है मुझे इसके लिए परमिशन लेनी पड़े एंड इट विल बी अलाउड। क्लियर? सो एंगेजेस इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल, provided that nothing contained herein shall disentitle a cost accountant from being a director but not a managing director, only a director, unless अगर मेरा पार्टनर उसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर रहा है तो क्या मैं उसकी डायरेक्टरशिप ले सकती हूँ? नो। इफ माई पार्टनर इज इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, इन दैट केस आई कैनॉट बिकम द डायरेक्टर, अदरवाइज मैं उस कंपनी के डायरेक्टर बन सकती हूँ। तो ये अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन में आ गया। क्लियर? लास्ट क्लॉज ऑफ दिस पार्ट इज क्लॉज नंबर 11, साइनिंग डॉक्यूमेंट्स बाय अदर्स। पहला क्लॉज क्या था? दिस फर्स्ट एंड लास्ट क्लॉज इज रिलेटेड हियर। फर्स्ट क्लॉज वाज यूज ऑफ नेम इन प्रैक्टिस, अपना नाम आप किसी और को यूज करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म से डिसॉल्व हो गई, उसी फर्म के नाम पे और लोग काम करें, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, आप सोच रहे हैं मेरी फर्म की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, इतने सालों से गुडविल बनाई है, उसी फर्म के नाम को कोई और यूज कर ले, नॉट अलाउड। आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 11 क्या है? 11 इज अबाउट साइनिंग डॉक्यूमेंट्स इन योर नेम। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आपके नाम पे कोई और साइन कर रहे हैं, आप कोई कॉस्ट स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई कर रहे हैं, वो कोई और साइन करके दे रहा है, आप इन्वेंट्री के पोजीशन को सर्टिफाई कर रहे हैं, कोई और साइन कर रहा है आपके बिहाफ में। सो इफ यू अलाउ अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस or a member not being his partner to sign on his behalf or on behalf of the firm any cost or pricing statements or any other statements relating thereto। क्या मैं किसी और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से साइन करवा सकती हूँ? इफ द पर्सन इज अ पार्टनर, इफ द पर्सन इज द पार्टनर। यहां पर एक्चुअली में देखो क्या लिखा है, इफ यू सी नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और अ मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर टू साइन ऑन बिहाफ। तो मतलब क्या हो गया? अगर जॉइंट ऑडिट टाइप का कोई सिचुएशन है तो मेरे बिहाफ में अगेन मैं ही साइन करूंगी, वहां पर भी दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, दोनों का नाम होगा, दोनों लोग साइन करेंगे अगर ऐसा परमिटेड हो तो। इन दैट केस अगर कोई मेरा पार्टनर है और कॉस्ट अकाउंटेंट है तो क्या वो साइन कर सकते हैं मेरे बिहाफ में? यस, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं मेरे बिहाफ में, वो फर्म के बिहाफ में साइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 क्लियर हो गया? एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि आपको पूरा पार्ट 1? यस मैम, फटाफट से करा दीजिए। क्लॉज नंबर 1 क्या था? यूज ऑफ नेम इन प्रैक्टिस। क्लॉज नंबर 2 एंड 3 रिलेटेड शेयरिंग फीस, रिसीविंग फीस। क्लॉज नंबर 4 नॉन परमिसिबल पार्टनरशिप। 5, 6, 7 रिलेटेड था। 5 क्या था? सिक्योरिंग बिजनेस फ्रॉम अदर्स। 6 इज सॉलिसिटिंग बिजनेस by way of advertisement, circular, notices, personal interview. 7th is एडवर्टीजमेंट ऑफ योर प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, मैंने ये हासिल किया, और यूज ऑफ डेजिग्नेशंस, टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स एडवाइजर, इस तरह के डेजिग्नेशंस यूज करना। क्लॉज नंबर 8 क्या था? नॉट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर। 9th इज वेरिएबल और कंटिंजेंट फीस। 10th क्या है? अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन। 11th इज साइनिंग allowing someone else to sign the documents on your behalf। ठीक है, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अभी आते पार्ट 2, बहुत सिंपल है। पार्ट 2 इज रिलेटेड टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, इन सर्विस। पहले हमने प्रैक्टिस की बात की, अब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जॉब कर रहे हैं तो आप इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं हैं। कोई भी आप कहीं जाएंगे तो आपको सीएमए की तरह ही पहचानेंगे। सो यू आर ऑल्सो बाउंड बाई सर्टन एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल दीज क्लॉजेस। पार्ट 2 के अंदर 2 ही क्लॉज हैं जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में किया। पार्ट 1 का जो 2nd एंड 3rd क्लॉज था, शेयरिंग फीस
एंड रिसीविंग फीस फ्रॉम अदर्स, वही दोनों यहाँ भी कवर्ड है. सो इफ यू आर एम्प्लॉयड बाय एनी कंपनी, आपके सैलरी, बोनस, अलाउंसेस का कोई भी हिस्सा क्या आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. So if you allow or pays or allows or agrees to pay directly or indirectly to any person any share in the emoluments of employment undertaken by him. Emoluments में क्या आ गया? Salary आ गई, allowances आ गए, कुछ भी whatever you are getting in the name of salary, उसमें से कुछ भी हिस्सा आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं. अगेन आउटसोर्सिंग वाला काम हो गया. आपको कंपनी ने कोई काम दिया, आपने किसी और को दे दिया, काम करवा लिया और उसके साथ अपनी फीस को शेयर कर लिया, तो ये अलाउड हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है. सिमिलरली रिसीविंग फीस अलाउड? नॉट अलाउड. एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम अ लॉयर, कॉस्ट अकाउंटेंट और ब्रोकर एंगेज बाय सच कंपनी, फर्म और पर्सन और एजेंट और कस्टमर, फर्म और पर्सन बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन. बेसिकली किसी से भी आप कोई शेयर फीस का रिसीव नहीं कर सकते, मतलब उनके प्रॉफिट्स का कोई शेयर नहीं रिसीव कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट 2. अब बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में. पार्ट 3 इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेंबर्स इन प्रैक्टिस एंड इन सर्विस. सो इट इज इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली. इसका मतलब हो गया एप्लीकेबल टू मेंबर्स in practice plus members in service, दोनों के ऊपर अप्लाई करते हैं. तो पार्ट 3 के 3 क्लॉज हैं. क्लॉज नंबर 1 क्या है? अगर अच्छा, इंस्टीट्यूट की 2 तरह की मेंबरशिप है, एक है एसोसिएट मेंबरशिप, दूसरा है फेलो मेंबरशिप. Once you qualify as a cost accountant, the membership that you will be receiving is the associate membership. You will be called as an associate of the institute, associate member of the institute. जब आपको 5 साल हो जाता है, एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, काम आप करने लग जाते हो, 5 साल होने के बाद you will be promoted to become a fellow member of the institute. ठीक है, फेलो मेंबर अगर आप लिखते हैं FCMA, in that case डिनोट होता है कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है काम का, आपने ज़्यादा वर्क हैंडल किया है, बिकॉज यू हैव गेन्ड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. अगर मैं FCMA नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने नाम के आगे FCMA लिख रही हूँ, तो आई विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल. ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर कोई अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम किस तरह से लिखते हैं. बेसिकली जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी एक सैम्पल क्वेश्चन एट द एंड. आपको आइडेंटिफाई करना होगा 2 बातें. 2 बातें आइडेंटिफाई करनी होगी. पहला, क्या ऑडिटर गिल्टी है, क्या कॉस्ट अकाउंटेंट गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का? इफ यस, अंडर विच क्लॉज? सो हाउ डू यू राइट? यू विल राइट क्लॉज डैश ऑफ पार्ट डैश ऑफ डैश स्केड्यूल. तो 3 चीजें लिखनी है. क्लॉज, पार्ट एंड स्केड्यूल. क्लॉज नंबर, पार्ट नंबर एंड स्केड्यूल नंबर. मैम ये क्लॉज नंबर्स हमें याद करने हैं, पार्ट नंबर्स याद करने हैं? यस, याद करने पड़ेंगे आपको. ठीक है, 3-4 बार देखोगे याद हो जाएगा. सोने के पहले एक बार रिवाइज कर लो. एक पेपर में सारे ये जो कीवर्ड्स हैं ये लिख के चिपका लो जहाँ सोते हो, और वहाँ पे रोज रिकॉल करो, आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो पार्ट 3 की बात कर रही थी मैं. पार्ट 3 का क्लॉज 1 क्या है? फेलो मेंबरशिप. If you are not a fellow member but you are denoting yourself to be a fellow, you are acting as a fellow. Second clause है non furnishment of information. आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, इंस्टीट्यूट ने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, कुछ इंक्वायरीज की और आपने मना कर दिया. यू आर नॉट फर्निशिंग दैट इन्फॉर्मेशन. मे बी आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं. So you'll be held guilty under this particular clause. Which clause? Clause 2 of part 3 of the first schedule. Clear? चलो. Next, clause number 3 is false information for securing work. जो advertisements दे रहे हैं, advertisement क्या? जो अगर write up आप दे रहे हैं, means open to CA, inquiries वगैरह में आप respond कर रहे हैं, means open to CMA, उसमें आप respond कर रहे हैं और वहाँ आप गलत information देते हैं, knowing it to be false. Responding in tenders inquiries, you are providing false information knowing it to be false.
In that case, you will be held guilty under clause 3 of part 3 of the first schedule. Clear है? Last part of the first schedule is part number 4. Again, this is applicable to the members of the institute generally. इसका मतलब क्या हुआ? To the members in practice and members in सर्विस, दोनों के ऊपर अप्लाई करता है. अगर आप मेंबर होके बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेंबर हैं इंस्टीट्यूट के, इन दैट केस आपके ऊपर भी अप्लाई कर जाएगा. मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली सब मेंबर्स के ऊपर ही अप्लाई होता है. इसके अंदर 2 क्लॉज है, बहुत सिंपल है. ये लेस देन इक्वल टू होगा, इसको चेंज कर लेंगे. If you have been convicted of an offense, you are a cost accountant, you have been convicted of an offense और आपको से 5 महीना तक you have been imprisoned, ठीक है, you were imprisoned for 5 months for a period less than 6 months, मतलब not exceeding 6 months if you have been you have been punished with imprisonment. अगर ऐसा कोई offense आपने किया है, in that case also you will be held guilty under part 4, ठीक है, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल. तो मैम अगर मैंने इसमें किस तरह के ऑफेंसेस आ सकते हैं, मतलब आप किसी पर्सनल लाइफ में भी आपने कोई ऑफेंस किया है, सपोज आपने किसी का रोड एक्सीडेंट कर दिया, ड्रिंक एंड ड्राइव में आपको अंदर किया गया था 3 महीने के लिए, तो क्या आप इस क्लॉज के अंदर गिल्टी पाने जाओगे? यस. क्यों मैम ये इस तरह का क्लॉज डाला गया है? सो दैट यू डोंट डिफेम योर प्रोफेशन. कभी भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन आएगी तो क्या आएगा? CMA XYZ ने ये काम किया, सबसे पहले आपके नाम के आगे CMA जोड़ा जाएगा, और CMA मतलब क्या? यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोफेशनल बॉडी, सो यू कैन नॉट डू सच, यू कैन नॉट एक्ट इन दिस मैनर. ठीक है, ये हो गया इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months. सेकेंड क्लॉज क्या है? डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन. कोई भी ऐसा काम अगर आप करते हैं, एनी एक्शन, मैम कुछ भी डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, कुछ भी डिफाइंड नहीं है. इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल, इफ यू ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, वेदर और नॉट, सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है, वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क. तो जो पार्ट 1 और 2 में हमने पढ़ा था, इट वॉज रिलेटेड टू आवर प्रोफेशनल वर्क. पार्ट 4 इज अदर मिसकंडक्ट. ठीक है, ये अदर मिसकंडक्ट है, देखो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है. अदर मिसकंडक्ट मतलब पर्सनल लाइफ को भी जोड़ा जाएगा, प्रोफेशनल मतलब ओनली वर्क लाइफ. तो इफ द काउंसिल बिलीव्स दैट एनी ऑफ योर एक्ट इज ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? यू विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 2 of part 4 of the first schedule. All right. So we have completed the first schedule. चारों parts हमने cover कर लिए. Now moving on to the second schedule. Second schedule में कितने parts थे? There are 3 parts. Part 1 10 clauses. Part 2 there are 4 clauses. Part 3 there is 1 clause. तो पहले बात करते हैं part 1 की. अच्छा, second schedule में minor offenses थे कि major offenses? बड़े बड़े crimes, बड़े बड़े offenses. ठीक है, crime तो नहीं बोलेंगे, offenses. Again, part 1 is applicable only to the cost accountants in practice. A cost accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, सबसे पहले आता है confidentiality breach, if he discloses information acquired in the course of his professional engagement to any person. So if you disclose information that you have acquired in the course of your professional work to any person other than the client without the consent of his client. अब मैम आप एक बात बताइए, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी आके हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है तो हम उनको भी मना कर दें कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है मैम, हम तो ब्रीच नहीं कर सकते हैं? नहीं. अगर कोई भी लॉ आपको बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी इस अथॉरिटी को, तो आप दे सकते हैं. बट अदर देन दैट आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट को किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आप किसी FMCG कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं और उसके अंदर में आपने जो कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है, आपको सारी अंदर की बातें पता चल गई. आपके एक दोस्त की भी कंपनी है FMCG की, आपने उसको सारी बातें बता दी, ये इनकी कॉस्ट यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा है, ये इनकी वीकनेस है, ये इनकी स्ट्रेंथ है.
तो ऐसा ये करने से क्या होगा, यू आर डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट। ऑफकोर्स क्लाइंट को पूछ के थोड़ी करोगे कि मैं अपने दोस्त की कंपनी को आपकी कंपनी की सारी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। क्लॉज 2 क्या कहते हैं? क्लॉज 2 says certifying information which is not examined by him। आप CMA क्वालिफाई करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेते हैं और अब आप ऐश की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। आपने क्या किया, मैं CMA तो बन गया, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है, पर मुझे प्रैक्टिस करनी नहीं है, मुझे सिर्फ साइनिंग करनी है। काम कोई और करे, मजे लेकिन मैं उठाऊं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? Whatever information you have not verified, how can you certify that? First is verification, then is certification, right? So if you certify or submit in your name or in the name of the firm a report of examination of cost accountant and related statements, unless the examination of such statements has been made by him or by a partner or employee in the firm or by another cost accountant in practice। वही जॉइंट ऑडिट वाला जो एग्जाम्पल था, अगर कोई दूसरे कॉस्ट अकाउंटेंट ने भी कुछ पार्ट ऑडिट किया है तो क्या आप ऐसा थोड़ी बोलोगे ये पार्ट में वो साइन करेगा, इधर मैं साइन करूँ, ऐसा नहीं होता ना। सो यू कैन नॉट सर्टिफाई एनी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एग्जामिन्ड बाई यू। इफ यू डू दैट, क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल में गिल्टी पाए जाओगे। क्लॉज नंबर 3 इज वाउचिंग फॉर फोरकास्ट। अब आप तो कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट, आपको कंपनी की बहुत अंदरूनी इन्फॉर्मेशन का यू आर अवेयर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच माइट डिटर्मिन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है तो शायद प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ेंगे, इनका एक्सपेंशन का क्या सीन है, बहुत सारी बातें आपको पता है। तो क्या अब आप ज्योतिष बन जाएंगे? आप कोई कॉफ़ी मीट में है फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पर आप कह रहे हैं तू देखना इस कंपनी के शेयर प्राइस बहुत भागने वाले हैं, इनका ये होगा वो होगा, बातचीत में नहीं, क्या आप लिखित में भी ये दे सकते हैं? कैन यू वाउच फॉर द फोरकास्ट ऑफ अ कंपनी? नो, यू कैन नॉट डू दैट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज यू कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। आप किस तरह से गारंटी कर सकते हैं? क्या ऑडिटर गारंटी देता है? रीजनेबल अश्योरेंस देता है। मैम रीजनेबल अश्योरेंस देता है, बट रीजनेबल अश्योरेंस किसकी देता है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की या फोरकास्ट की? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के पोस्टमार्टम को, वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट्स दैट वर प्रिपेयर्ड अर्लियर, उसकी हम ऑडिट करते हैं। जो अभी तक बना ही नहीं है उसको आप कैसे सर्टिफाई कर सकते हो? सो इफ यू डू दैट यू विल बी फाउंड गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। यहां तक क्लियर है? तो 3 क्लॉज क्या हो गए? 3 क्लॉज फटाफट बताइए। कॉन्फिडेंशियलिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 2 हो गया यू आर सर्टिफाइंग इंफॉर्मेशन नॉट एग्जामिन्ड बाय यू। क्लॉज नंबर 3 हो गया वाउचिंग फॉर फोरकास्ट। अच्छा मैम, अगर कोई कंपनी हमें रिक्वेस्ट करती है कि आपको तो अकाउंट्स वगैरह की भी नॉलेज है, कॉस्ट की नॉलेज है, आप मुझे एक फोरकास्ट बना के तो दीजिए कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में मेरा क्या होने वाला है। मैम बना के भी नहीं दे सकते क्या? यू कैन प्रिपेयर द फोरकास्ट। क्या बोला मैंने? वाउचिंग फॉर फोरकास्ट इज नॉट अलाउड। So if you permits his name or the name of his firm to be used in connection with an estimate of cost or earnings contingent upon future transactions in a manner which may lead the audience of that statement to that report to believe that you are vouching for the accuracy। कॉस्ट ऑडिटर का साइन है, मतलब उसने वाउच कर दिया इसके लिए कि बस सब कुछ ऐसे ही होने वाला है। इस तरह का वर्क यू कैन नॉट डू। Clause number 4 is substantial interest. If you are expressing your opinion on cost or pricing statement of any business जिसमें आपके पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, फर्म का या पार्टनर का एक सब्सटैंशियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्या वो काम आप कर सकते हैं? उसकी कॉस्ट ऑडिट आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टनर का ही फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं मेरा भी आ जाएगा इनडायरेक्टली। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट अपॉइंटमेंट। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट। In the course of audit, I came across a material fact which the users of cost statements, which the central government should be aware of, but that information, that fact has not been disclosed in the cost statements। की जानी चाहिए थी पर नहीं की गई। बहुत मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे सपोज कि एम्प्लॉय कॉस्ट को लेके
कुछ रिवैम्प हुआ है, कुछ लॉज चेंज हुए हैं जिसके वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, बट वो इफेक्ट का कुछ भी जिक्र कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं हुआ, बट होना चाहिए था। अगर ऐसा कोई मटेरियल फैक्ट पता चलता है और आप नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो भी यू विल बी फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 5 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल। क्लॉज 6 इज फेलियर टू रिपोर्ट अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। पहला था मटीरियल फैक्ट, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जरूरी नहीं मिस स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन जो मिसिंग थी कॉस्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्लॉज इज रिगार्डिंग मटीरियल मिस स्टेटमेंट, कोई गलती पाई गई और आपने छुपा ली उसको, यू हैव नॉट रिपोर्टेड इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। सो इफ यू फेल टू रिपोर्ट अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट known to him or to appear in a cost or pricing statement with which he is concerned in the professional capacity. Clear? Clause number 7 is regarding gross negligence. You went to the client place for audit. आप ऑडिट कर रहे हैं, आपने पेपर्स वगैरह ले रखे हैं, बस इसी तरह से टिक कर रहे हैं नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी, बस रिपोर्ट ही तो साइन करनी है, बाकी क्या है। इफ यू आर नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, नेग्लिजेंस ये वाला क्लॉज बहुत ही खतरनाक है, इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड किया जा सकता है। सपोज एक ऐसा डॉक्यूमेंट था, एक ऐसा स्टेटमेंट था जो बहुत ऑब्वियस है, आपको चेक करना चाहिए एज अ कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल कंजम्पशन, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। आप कहोगे कि क्लाइंट ने मुझे दिया ही नहीं तो मैं देखूं कैसे, मेरी तो ड्यूटी नहीं थी, क्लाइंट मुझे दे तब तो मैं चेक करूं। तो यू आर बीइंग नेग्लिजेंट, यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, यू विल बी फाउंड गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल, ठीक है। फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। अगर आपने अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई किया या आपने अपनी एक क्लीन ओपिनियन इशू की, क्लीन ओपिनियन क्वालिफिकेशन समझ रहे हैं ना आप, इंटर में पढ़ा है हमने, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, जिस भी तरह की रिपोर्ट आपने इशू की है, आपने यूं ही बस रिपोर्ट इशू कर दी, यू आर नॉट हैविंग एनी एविडेंस, नॉट हैविंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच इज सपोर्टिंग दैट ओपिनियन। इफ आई एम इशूइंग अ क्लीन ओपिनियन, I should have sufficient information to prove that the opinion should not have been adverse, the opinion should not have been qualified. My opinion is clean and I have information to support that. If you fail to obtain that information which is required to support your opinion in the audit report, then you will be found guilty under which clause? Clause number 8. Clause number 8 of part 1 of the second schedule. समझ रहे हैं आप, यहाँ पे सीरियस बातों का ध्यान है। क्लॉज पार्ट 1 जो था फर्स्ट शेड्यूल का, उसमें छोटी छोटी बातें थी, एडवर्टीजमेंट की, सिक्योरिंग बिजनेस फ्रॉम अदर्स, ठीक है, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स आपने कार्ड वगैरह में छपा दी। यहाँ पे और बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई मटेरियल डिपार्चर हुआ, आपने बताया नहीं रिपोर्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोई चीज़ इस तरह से XYZ होनी चाहिए थी और उसका ABC कर दिया गया है, that means it's a material departure from the principle and you haven't reported it in the audit report. Next clause number 9 में आप guilty पाए जाएंगे, clause number 9 of the first part of second schedule. Last clause number 10 is regarding client का पैसा। Suppose client आपसे कुछ taxation की भी advice ले रहा है, कुछ service ले रहा है, और आपने क्या किया, जब तक आपको पैसे मिल गए वो, और आपने उसको स्टॉक मार्केट में लगा दिया। क्लाइंट का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ एडवांस पेमेंट दिया, आपने उसको स्टॉक मार्केट में लगा दिया। या सपोज आप क्लाइंट के कुछ ऐसे गवर्नमेंट के पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में आप कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं क्लाइंट की, तो क्या वो जो पेमेंट है, सपोज आप क्लाइंट के लिए फॉर एग्जांपल आप ट्रेड लाइसेंस बनवा के दे रहे हैं, या क्लाइंट के लिए आप कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं जिसके लिए क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हैं, तो उस पैसों का इस्तेमाल आप दूसरे पर्पस के लिए कर सकते हैं क्या? नो, यू कैन नॉट डू सो, यू हैव टू कीप देम इन द सेपरेट बैंक अकाउंट। So fails to keep money of his client other than fees or remuneration or money meant to be expended in a separate banking account, or to use such monies for the purpose for which they are intended within a reasonable time. तो जिस काम के लिए पैसे दिए गए उसके लिए यूटिलाइज कर लो।
क्लाइंट ने कहा मुझे थोड़ी शेयर इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, बट मुझे तो पता नहीं है किस तरह से होगा, आप मेरे बिहाफ में कर दीजिए, आपको पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी की अभी बात नहीं करते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट कर रही हूँ। तो उस पैसों का इस्तेमाल क्या मैं खुद के पर्सनल पर्पस के लिए कर सकती हूँ? नहीं, वो क्लाइंट के पैसे हैं। सो इफ यू फेल टू कीप द मनी ऑफ द क्लाइंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, गिल्टी अंडर विच क्लॉज? क्लॉज नंबर 10 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल। क्लियर? अब आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 इज वेरी सिंपल, अगेन इट इज एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, मतलब बोथ प्रैक्टिस सर्विस सारे मेंबर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। क्लॉज 1, अगर आपने काउंसिल की, इंस्टीट्यूट का जो काउंसिल है, इंस्टीट्यूट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, किसी भी प्रोविजन का अगर आपने उल्लंघन किया, इफ यू हैव कॉन्ट्रावीन्ड एनी ऑफ द प्रोविजंस, एनी ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस issued by the council, you will be held guilty under clause 1 of part 2 of the second schedule. अब अगर सर्विस में अगर आप हैं, अगर आप एम्प्लॉय है किसी कंपनी के और आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की, तो यू विल बी फाउंड गिल्टी अंडर क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल। प्रैक्टिस में तो क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड स्केड्यूल था। अब जो एम्प्लॉय है, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, firm or person discloses confidential information except when required by law, of course, or except as permitted by the employer। अगर मेरा एम्प्लॉयर परमिट करे तो एम्प्लॉयर के ऊपर वो लाइबिलिटी आ जाएगी फिर। इज इट क्लियर? यस मैम। थर्ड इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। रिमेंबर पार्ट 3 के अंदर भी एक फॉल्स इंफॉर्मेशन था, बट दैट वाज फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिंग वर्क। ठीक है, एड वगैरह में आपने गलत इन्फॉर्मेशन, व्हेन आई से एड आई मीन नोटिस और यू नो दिस राइट अप वगैरह, एडवर्टीजमेंट नहीं, होर्डिंग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये वाला फॉल्स इन्फॉर्मेशन है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डिसिप्लिन को, डिसिप्लिनरी कमिटी को, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, इंस्टीट्यूट के बॉडीज को आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, नोइंग इट टू बी फॉल्स। So it includes any information, statement, return or form to be submitted to the institute, council or any of its committees, any particulars knowing them to be false. Clause number 4 is regarding embezzlement. Embezzlement क्या हो गया? क्लाइंट के पैसों का डिफल्केशन कर रहे हैं आप। क्लाइंट ने आपको कुछ पैसे दिए कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए, उन पैसों कि आपने चोरी कर ली, उन पैसों का आपने गलत इस्तेमाल किया। सो दैट इज डिफल्केशन। एनी मनी दैट यू रिसीव इन योर प्रोफेशनल कैपेसिटी, इफ यू एम्बेजल दैट, यू विल बी फाउंड गिल्टी अंडर विच क्लॉज? क्लॉज नंबर 4 ऑफ विच पार्ट? पार्ट नंबर 2 ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल। बात क्लियर है? लास्ट पार्ट 3 के अंदर एक ही क्लॉज है, इट इज रिगार्डिंग अदर मिसकंडक्ट relating to the members of the institute generally. So both applicable for practicing cost accountants and those who are in service, all the members. Remember part 2 of the, not part 2, part 3 of the, part 3 की part 4, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। जो फर्स्ट स्केड्यूल था उसके अंदर पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर जो फर्स्ट क्लॉज था, इम्प्रिजनमेंट। अगर आपने ऐसा कोई क्राइम किया, आप पीछे गए सलाखों के, है ना, 6 महीने से लेस टाइम के लिए, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months, अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया, इन दैट केस इंस्टीट्यूट के अंदर भी यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और अगर आपने ऐसा भयंकर ऑफेंस किया दैट यू हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर अ पीरियड, यू हैव बीन sentenced to prison for a period exceeding 6 months, so you will be held guilty under the second schedule, part 3 clause 1 part 3 of the second schedule. ठीक है, whether in practice or not shall be deemed to be guilty of other misconduct if he is held guilty by any civil or criminal court which is punishable with imprisonment for a term greater than 6 months. तो लेस देन 6 months वाला छोटा क्राइम होगा शायद, तभी 6 महीने तक की जेल आपको दी गई, तो आप गिल्टी पाए जाओगे फर्स्ट स्केड्यूल में, अदरवाइज यू विल बी गिल्टी अंडर द सेकेंड स्केड्यूल। एम आई क्लियर अप टिल दिस? यस मैम। अभी एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से।
ये December 19 एग्जाम में आया था, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, December 19 में ये पूछा गया था. अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स वॉज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू इवेल्युएट द कॉस्ट्स ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट फॉर इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म वॉज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो जिस फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है ये काम करने के लिए, टू इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसी का एक पार्टनर जो है, ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द कंपनी. तो क्या अब यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? तो पहले तो आप बताओ आपको क्या ध्यान में आ रहा है. मैम इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पार्टनर है उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, विच क्लॉज? क्लॉज नंबर 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल. दिखा देती हूँ आपको एक बार फिर से. So if you express any opinion on cost or pricing statement of any business or enterprise in which he, his firm or his partner, either you yourself or firm or partner has a substantial interest, in that case you will be guilty under clause 4 of part 1 of the second schedule. तो आंसर में आपको दो चीजें लिखनी है, क्या गिल्टी है या नहीं है, और है तो कौन से क्लॉज में उसका डिस्क्रिप्शन देना है. तो यहाँ पे क्लॉज की डिस्क्रिप्शन दे दी गई है. अकॉर्डिंगली यहाँ लिखा गया, एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस द फर्म हैज बीन रिटेन टू इवैल्यूएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट फॉर इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, देयरफॉर दिस अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. यस, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अब आप मुझे बता सकते हो क्या इसकी पनिशमेंट क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर वुड बी प्लेस्ड बिफोर whom? बिफोर द डिसिप्लिनरी कमिटी. पनिशमेंट क्या होगी? एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग: रिप्रिमांड द मेंबर, रिमूव द नेम ऑफ द मेंबर फॉर अनडिफाइंड पीरियड और परमानेंटली, फाइन अप टू ₹5 lakhs. Am I clear? So this brings us to the end of the प्रोफेशनल एथिक्स पार्ट. बट स्टिल यहाँ पर भी हमें कुछ बातें और पढ़नी है. मैंने आपको बताया ना CWA एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं जो यहाँ पर हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो वो अभी हम कवर कर लेंगे. उसके पहले रिमेंबर हमने फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात की थी इस चैप्टर में, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12. कॉस्ट ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज वर्क अगर कोई भी फ्रॉड ऑब्जर्व करता है बाई ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी तो उसको रिपोर्ट करना है. 1 करोड़ से ज़्यादा होने से ऑडिट कमेटी, कम होने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. याद आ रहा है? पूरा हमने पढ़ा था, एकदम सुंदर सा चार्ट बनाया था. सेक्शन नंबर 143(12). अगर आप फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसके लिए सेक्शन नंबर 143 का सबसेक्शन 15, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 143 का 12. क्या पनिशमेंट होगी? इस सेक्शन में अमेंडमेंट आई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. पहले इसके फाइन की लिमिट्स कुछ और थी, अभी एकदम स्ट्रेट कर दिया गया है. फाइन अमाउंटिंग टू ₹1 lakh अप टू ₹25 lakhs. So any amount ranging from 1 lakh to 25 lakhs you may be punishable with. ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया. प्रोफेशनल एथिक्स हमने कवर कर लिया. अभी बात करते हैं सेक्शन नंबर 21 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट की. इट प्रोवाइड्स दैट द इंस्टीट्यूट कैन कॉन्स्टिट्यूट डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी, और इनकी जो पावर्स हैं those powers will be the same powers which are vested in a civil court under the code of civil procedure. ठीक है, सिविल कोर्ट की पावर्स इन कमिटीज और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास में रहेगी. अब ये पार्ट है एक पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट. बहुत सिंपल है, ठीक है. आपको देखने में लगेगा कि मैम इतने सेक्शन है, इतना कुछ पढ़ना है, बट इफ़ यू लिसन टू मी प्रॉपरली, अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा. कुछ 6 या 7 सेक्शंस हैं CWA एक्ट 1959 के जो हमें पढ़ने हैं. ध्यान से सुनिए. सेक्शन नंबर 24 पहले हम पढ़ रहे हैं. मैंने देखो सब कुछ आपके लिए मार्क करके रखा है, क्या पॉइंट पे आपको फोकस करना है. तो पहला पॉइंट है पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर. बाप रे बाप, इतना भयंकर गुनाह. यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड यू आर क्लेमिंग, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. या फिर आप मेंबर तो हैं इंस्टीट्यूट के बट प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट COP नहीं है आपके पास और आप दिखा रहे हैं कि यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. इन बोथ द केसेस आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी.
ठीक है. सो लेट्स रीड. एनी पर्सन हु नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट represents that he is a member or uses the designation. कॉस्ट अकाउंटेंट है नहीं बट लिख रहे हैं अपने नाम के आगे कॉस्ट अकाउंटेंट है. या फिर मेंबर तो हैं बट नॉट हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस represents that he is a practicing cost accountant. इन दैट केस आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, यहां पे लिखेंगे जैसे मैं लिख रही हूं. पहली दफा अगर आपने ऐसा काम किया तो फाइन अप टू ₹1,000. क्या बोल रहे हैं मैम? यस. सब्सिक्वेंटली अगर बार बार किया, सब्सिक्वेंटली अगर मिले तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है या फिर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है या फिर बोथ हो सकता है. ठीक है. सी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 6 मंथ्स और फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 5,000 और विथ बोथ. एम आई क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट आते सेक्शन नंबर 25 में. पेनल्टी फॉर यूजिंग नेम ऑफ द काउंसिल अवॉर्डिंग डिग्रीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. मतलब मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट की तरह वेरी सिमिलर टू दैट एक और वेबसाइट खोल ली. मैं भी लोगों को कॉस्ट अकाउंटेंसी का डिप्लोमा सर्टिफिकेशन दे रही हूँ, ऐसा कि लगे कि ये सीएमए ही है. वेरी आइडेंटिकल टू द कॉस्ट अकाउंटेंट, टू द वन विच इज इशूड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट. अगर ऐसा काम किसी ने किया तो अगेन उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी. नो पर्सन शैल यूज अ नेम or common seal which is identical with the name or common seal of the institute or so nearly resembles it as to deceive. लोगों को cheat करने के लिए ये किया गया है. Award any degree, diploma or certificate or bestow any designation which indicates or purports to indicate the position or attainment of any qualification or competence in cost accountancy which is similar to the one that is being issued by the institute. या फिर किसी भी तरह से कॉस्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना. अगर कोई भी पर्सन या फर्म ऐसा काम करता है तो पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट बिल्कुल यही है जो सेक्शन 24 की थी. लिख लो यहाँ पे, सेम एज सेक्शन 24. पहली दफा 1,000, फिर भी नहीं माने तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू ₹5,000 और बोथ. ठीक है. बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो कंपनी या जो फर्म है, जो पर्सन है जो ऐसा काम कर रहा है, लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेशन दे रहा है सिमिलर टू कॉस्ट अकाउंटेंसी वाला, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसके अंदर उसने क्वालिफिकेशन कम प्रिस्क्राइब कर रखी है, इतनी ट्रेनिंग्स नहीं है, उसके जो क्वालिफाइड लोग होंगे दे आर नॉट एज कॉम्पिटेंट एज द कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम द सीएमए इंस्टीट्यूट, इन दैट केस पेनल्टी माफ़ भी की जा सकती है. ठीक है. अगर मैं कोई लोअर टाइप का कोर्स करा रही हूँ, लोगों को कॉस्ट के बारे में ज्ञान सिखा रही हूँ और सर्टिफिकेट डिप्लोमा दे रही हूँ, तो आप क्या कहोगे कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट्स बना रही हूँ? नहीं, आई एम नॉट डूइंग दैट. ठीक है. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये मान जाता है, इन दैट केस पेनल्टी में बी वेव्ड. नेक्स्ट बात करते हैं, कंपनीज नॉट टू एंगेज इन कॉस्ट अकाउंटेंसी, सेक्शन नंबर 26. ये हमने सेक्शन 141 में भी पढ़ा है इफ यू रिमेंबर, कि कोई कॉस्ट, वहां पे ऑडिटर की बात हो रही थी. ऑडिटर कैन नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. तो यहाँ क्या बात हो रही है? नो कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और एल्सवेयर शैल प्रैक्टिस एज कॉस्ट अकाउंटेंट्स. सेम चीज यहाँ भी है. तो CWA एक्ट में भी वो कवर्ड है, कंपनीज एक्ट में भी. ऑडिटर उनको नहीं बनाया जा सकता है. यहाँ पर बेसिकली एकदम स्ट्रेट ना कर दी गई है कि आप कंपनी बना के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. अगर आपने ऐसा किया तो पेनल्टी क्या है? फर्स्ट कन्विक्शन पे आपकी पेनल्टी अप टू ₹1,000, सब्सिक्वेंटली ₹5,000. सो फर्स्ट पे है अप टू ₹1,000, सब्सिक्वेंट पे है अप टू ₹5,000. अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई है क्लास में भी, फिर रिपीट कर रही हूँ. एग्जामिनेशन के अंदर आप पूरा लिखेंगे ₹1,000, ₹5,000. ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ लर्न करने के लिए. ठीक है. प्रोफेशनल एग्जाम्स में आपको पूरा इन वर्ड्स लिखना पड़ेगा.
चलो सेक्शन नंबर 27 देखो, अनक्वालिफाइड पर्सन नॉट टू साइन डॉक्यूमेंट्स. इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट यू शैल नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. तो अगर कॉस्ट ऑडिटर ऐसा काम करता है, अगर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसा काम करता है, यू आर लेटिंग समवन एल्स साइन ऑन योर बिहाफ, इन दैट केस यू विल बी फाउंड गिल्टी अंडर विच क्लॉज, क्लॉज नंबर 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल. और सामने वाला बंदा जो अनक्वालिफाइड है, जो आपके लिए साइन कर रहा है, उसके ऊपर भी पनिशमेंट है. क्या पनिशमेंट है? फर्स्ट कन्विक्शन पे पहली दफा जब गलती हुई तो छोटी छोटी सजा है. फाइन greater than equal to 5,000, fine ranging from, you can write fine ranging from 5,000 to rupees 1 lakh. फिर भी नहीं माने, subsequent second and subsequent conviction में fine from 10,000 to rupees 2 lakhs. into 2 कर दो, पहले वाले का into 2. इसको याद करने के लिए फर्स्ट into 2, 5 2s are 10,000 and 2 into 1 is 2 lakhs. Clear? Section 28 is offenses by companies. CWA एक्ट में लिखे गए कोई भी प्रोविजन को अगर कोई कंपनी वायलेट करता है, तो कंपनी तो आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी तो कुछ है नहीं, पर्सन नहीं है, किसको आप पनिशमेंट देंगे जाके? जो भी पेनल्टीज है, कंपनी and every person who is in charge of, responsible to the company for the conduct of its business when that offense was committed, सारे persons liable हो जाएंगे. मतलब चाहे आपका कंपनी सेक्रेटरी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर वगैरह हो, सब जो है वो लायबल ठहराए जाएंगे. बट अगर सपोज मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने प्रूव किया कि मुझे नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ की और मैंने पूरे डिलिजेंटली एक्ट किया है, देन आई माइट नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. क्लियर? लास्ट सेक्शन इज सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट. जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के क्लॉजेस हैं, इंस्टीट्यूट को इसकी जानकारी किससे मिलेगी? अगर कोई कंप्लेन फाइल करेगा, या फिर तो इंस्टीट्यूट खुद प्रोबिन कर रहे हैं, या फिर कोई कंप्लेन फाइल करेगा. तो जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, कोर्ट के जो भी मैटर्स होते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, द काउंसिल any legal proceeding can take place only and only on complaints made by or under the order of the council or the central government. So if you complain to the council or the central government regarding some aspect, only then any legal proceeding can take place. Is it clear? तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 के सारे अपडेट्स कवर हो गए हैं, विच इज कॉस्ट ऑडिटर. हमने क्या क्या कवर किया? मेन 2 पार्ट्स थे. प्रोफेशनल एथिक्स हमने कवर किया, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, एंड वी ऑल्सो कवर्ड सर्टेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम द CWA एक्ट रिगार्डिंग पेनल्टीज. ऑल राइट, दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच एवरीवन. ऑल द बेस्ट.